آج 11 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ذی الحج عید کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج عید الاضحیٰ کے دوسرا دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اسی اتوار نصیب بدل جائے گا۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور عید الاضحیٰ کے دوسرے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پر کامیابی دیکھنا چاہتا ہے، آج ذی الحج کی 11 تاریخ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ عید الاضحیٰ دوسرے دن یہ 3 کام جس نے بتائے گئے طریقے سے کیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقیناً بنایا۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ اک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ذی الحج کی 11 تاریخ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر دعا غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے ورنہ پچھتاؤ گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ذی الحج کی 11 تاریخ عید الاضحیٰ دوسرے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں آنا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر اپنی قیمتی وقت میں صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یقین کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آئے گا۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہی ہوں آپ کو کوشش کر کے جلد از جلد باقی تمام دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اور دوسری بات کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی ان 3 چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ ان کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہے، میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر 11 تاریخ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس وظیفے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، تو آج کا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اتوار تو بہت سے آئیں گے
लेकिन ज़िलहज के 11 तारीख ईद उल अज़हा साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और आज इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में मत गुजारना। कतई नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन, आपकी वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज ज़िलहज की 11 तारीख ईद उल अज़हा का दूसरा पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ते, आप मुख्तसर और सादा सा सल्ले अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्ले अला वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। एक बार तो आपके लिए मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक ताला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद के लिए नियत करनी है। हर इंसान की नियत अलग, हर इंसान की हाजत अलग। जिसको जो चाहिए आज अल्लाह से मांग लो। आज ज़िलहज की 11 तारीख ईद उल अज़हा का दूसरा दिन आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नसीब को खोलने वाला है, हर हाजत को मुकम्मल बनाने वाला है। मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हो, आज रब्बे करीम से मांग लेना, अपने अल्फाज में मांगिएगा। आप घर चाहते हैं, घर मांग ले। गाड़ी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं। अपने तमाम मकासद के नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। औज़ु तस्मिया पढ़ने से तमाम असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम के शुरू में तौज़ो तस्मिया पढ़ लिया जाए, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकसद की नियत कर ली, तौज़ो तस्मिया पढ़ लिया, तो आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहला काम जो आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा रब्बे करीम के सिफाती नामों का है। वो सिफाती नाम या वहाबू या रज़ाकू है। या वहाबू रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है जो एक रात में हर हाजत को पूरा करता है। या वहाबू अब अपने करीम का वो सिफाती नाम है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। या रज़ाकू का मतलब रिज़्क़ देने वाला। अगर आप भी अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप इज्जत और दौलत के खजाने लूटना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी नस्लों को माला माल देखना चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज या वहाबू या रज़ाकू का ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देख लीजिएगा। मेरा रब दौलत के खजानों से आपको माला माल कर देगा। मेरा रब नस्लों को आबाद कर देगा। मेरा रब आने वाली मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा फरमा देगा। आपने या वहाब या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाकू 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह आपने या वहाबू या रज़ाकू अपनी हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लेना है। या वहाब 11 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ने के दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ मांगनी है। 11 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। या वहाबू या रज़ाकू 11 बार पढ़ते साथ आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। आपकी तमाम नामुमकिन हाजात, नामुमकिन परेशानियाँ एक रात में पूरी हो जाएंगी। या वहाबू या रज़ाकू पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और
اللہ ताला फरमाता है, जिसकी नेकियां ज्यादा होती हैं मैं इस बंदे से राजी हो जाता हूँ। आज अगर कोई बंदा, जो शख्स अल्लाह का लाडला होना चाहता है, जो शख्स अल्लाह के करीब होना चाहता है, जो शख्स अल्लाह से अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने पसंद के नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, सूरह इखलास को पढ़ ले। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सूरत इखलास एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलता है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से 1 मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरह इखलास को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जिल हज की 11 तारीख ईद उल अज़हा के दूसरे दिन सिर्फ 3 बार पढ़ना है और 3 बार तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। एक एक बात को समझ कर पढ़ना है, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, किसी का बाप नहीं, ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है मैं इसके लिए 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के खजानों के मुंह खोल देता हूँ। और 3 बार सूरह इखलास को पढ़ने के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो आप ये कुरान मजीद के सवाब से महरूम रह जाएंगे। और जिसने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सिर्फ 3 बार सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह इसका नसीब बदल जाएगा, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह से जो मांगोगे मिल जाएगा, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहेगा। दोस्तों आपको वो अमाल बता रही हूँ कि आज तक किसी भी शख्स ने पढ़े, अल्लाह करीम ने इसे रातों रात अमीर व कबीर बना दिया। आपने सूरह इखलास को 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी काम कौन सा करना है? आखिरी नंबर पर आपने वो वजीफा पढ़ना है जिसके बगैर ये नामुकम्मल है। आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है, मैं एक बड़ी गारंटी वाला अमल बता रही हूँ, आप यकीन कीजिएगा। जो शख्स चाहता है कि इस शख्स के नामुमकिन काम आज मुमकिन हो जाए, जो शख्स चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, इस बेटी का रिश्ता नहीं होता, अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ ले। जिस बेटे को रोजगार नहीं मिलता, नौकरी की तलाश है, कारोबार नहीं चलता, कारोबार बंद हो चुका है, जिस शख्स को लगता है कि इसके घर में बेरोजगारी है, बेऔलादी है, परेशानियां हैं, तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, ये 3 काम जरूर कर ले। जो कई सालों से ना मिल सका, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये 3 काम, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब और तदाद से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर तरीके से जानता है। आपने अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और सच्ची तौबा के बाद आपने रब्बे करीम से हाथ उठाकर जिद करके मांगना है। जिस तरह एक बच्चा जिद करता है इस तरह रो रो कर अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो शख्स कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो दोस्तों आज 3 अमाल करने के बाद अल्लाह से जो मांगेगा इंशाअल्लाह इसको मिल जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आपने दुआ करनी है, अपने अल्फाज में मांगनी है, अल्लाह से बात करें, रोएं, अल्लाह के हबीब के वसीले मुझसे मांगे। आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता करे, जो ना मांग सके वो भी अता करे, आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में लिख दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी
ناصر آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔